Hello everyone. So let's discuss a new topic here, which is team formation or grouping. And this topic is going to be very important one for your CAD exam preparation. See, in logical reasoning section, there is always one set you can usually see in the exams. So before we move to the concepts, before we move to the topic, let's see some of the basic ideas which is important for your team formations questions. So actually ये जो topic है आपका team formation, this is also a part of the arrangement. Okay, so this is coming from the arrangement, and if we are seeing the arrangement which is in the specific teams or in the groupings, तो अरेंजमेंट के सेक्शन में भी हमने यही देखा था कि यू आर गिवन सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स and they are arranged in some sort of a sequence. Here in team formation you will see the same things, but there are certain differences will be there. So what are the differences? Here we see, and then we will see some example set to understand better. Okay, तो सबसे पहला हम बात करेंगे, जब हम टीम फॉर्मेशंस को देखते हैं तो टीम फॉर्मेशन के एनालिसिस के लिए है ना, टू एनालाइज द डेटा यू नीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट context. What is the context given? That is going to be a very important, because generally जो team formations के questions होते हैं उसमें आपको एक certain situation दिया रहता है, और based on certain situation you have to make a certain kind of the arrangement or well defined arrangement. Generally what happens in the context, you are given a situation. Okay, जब हम बात करेंगे सिचुएशन की, मीन्स आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि लेट्स से देयर आर, फॉर एन एग्जांपल वी से लेट्स से हमारे पास में ए बी सी डी ई, देयर आर 5 पीपल आर देयर. ओके, 5 पीपल आर देयर, और यदि हम इन 5 लोगों को लेकर के एक टीम बनाना चाहें या एक ग्रुपिंग बनाना चाहें, एंड दे से वी वांट टू हैव अ ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स. ओके, अब ये जो 3 पर्सन्स है ये हमारे लिए कंडीशन का काम करेगी, एंड दिस बिकम्स द कॉन्टेक्स्ट, और इसके ऊपर ही क्वेश्चन की जो फॉर्मेटिंग है वो भी डिपेंड करेगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग टू एनालाइज द डेटा इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइंग द कॉन्स्ट्रेंट्स. ठीक है, तो टीम फॉर्मेशन के अंदर या ग्रुपिंग के सेक्शन के अंदर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर गिवन सम कंडीशंस, and on those specific conditions you have to organize that data. okay, तो जब हम constant की बात करते हैं तो constant हमको बताता है कि किस प्रकार के conditions हमको दिए हुए हैं. अब conditions क्या हो सकते हैं कि condition में हम ये कह सकते हैं कि let's say उसमें ये कहेगा कि A has to be in a particular team, A has to be in any specific team. या condition ये भी हो सकती है कि E cannot be in any team, E cannot be any team. ठीक है, ये भी एक तरह का हमारा कंडीशन बेस्ड हो गया. ठीक है, तो जब हम कंडीशंस की बात करेंगे तो कंडीशंस को ध्यान रखते हुए हम अपने डेटा को आगे फेच करेंगे. ठीक है, आइडेंटिफाइंग द कॉन्टेक्स्ट, देन आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट, है ना. सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है, और उन कंडीशंस के ऊपर यू विल ऑर्गेनाइज योर डेटा टू डिटरमाइन द टीम. ओके, अब जब हम टीम डिटरमाइन करेंगे दैट मीन्स इट विल बी वेल प्लेस्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड सेक्शंस वेयर वी विल कीप the groupings or the same number of elements which will having the similar kind of attributes. okay, तो जब हम teams बनाएंगे तो हर टीम की अपनी एक attributions होंगी और उसके according we have to organize the data. ठीक है, तो ये basic ideas हैं to go through with the team formation questions, and to understand it more we'll see a basic problem here with an example, so we'll learn it better. Now look at a question here. This is a very basic example for your team formations, and it says a certain directions as a guest house has 6 rooms A, B, C, D, E and F. Among these A and C can accommodate 2 persons each, the rest can accommodate only 1 each. okay, so just like अभी जो हमने बात करी कि यहाँ पे जो आपको कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशंस क्या दिया है कि ए और सी जो है उसमें 2 अकोमोडेशन है, 2 ऑक्यूपेंसी वाला रूम है, और बाकी सारे जो हैं वो सिंगल ऑक्यूपेंसी है. तो ये कंडीशन हो गई, और कंडीशन के साथ में आपको
सिचुएशन क्या दिया है, सी हमने बात करी कॉन्टेक्स्ट की, तो कॉन्टेक्स्ट क्या दे रखा है कि 8 गेस्ट P Q R S T U W एंड X आर टू बी केप्ट इन दोज रूम्स, मतलब हमारे पास 6 रूम है, उसमें हमें 8 लोगों को प्लेस करना है. ओके, एंड देन दे से T Q एंड X आर फीमेल्स वाइल रेस्ट आर मेल्स. तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट को देख लें, और दो जेंडर्स जो हैं, टू जेंडर्स कैन नॉट बी पुट टुगेदर इन द सेम रूम. तो सबसे पहले हम देख लें इसका जो फॉर्मेटिंग है वो किस प्रकार से होगा. वो क्लियरली दिख रहा है हमको कि हमारे पास में जो रूम्स हैं हम उनको टैली कर लें. देयर आर डिफरेंट रूम्स लाइक A B C D E एंड F. तो हमारे पास में ये 6 अलग अलग रूम है, लेकिन इसके अंदर क्या बोल रहा है कि रूम A और C, इसका कंडीशन दे रखा है, इसमें 2 पर्सन्स की ऑक्यूपेंसी हो सकती है. मींस हम पहले बात करें रूम A की, यानी कि ये है हमारा डबल ऑक्यूपेंसी वाला, एंड C इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग 2 पीपल हेयर. बाकी जो रूम्स हैं उसमें सिंगल ऑक्यूपेंसी हमारी आइडेंटिफाई होगी. तो ये कंडीशन पे बेस्ड हो गया. उसके बाद इसने कहा कि हमारे जो पीपल हैं Q T और X, तो हम इसको भी थोड़ा सा एक सिग्निफाई कर लेते हैं, Q T एंड X, दीज आर फीमेल्स. और फीमेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए विल जनरली यूज अ नोटेशन कि हम उस पर माइनस साइन प्लेस कर देते हैं, यानी कि जो बाकी के कैंडिडेट्स बचेंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे, और वो बाकी कैंडिडेट्स क्या हो जाएंगे, P R S U एंड W. तो ये हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं, इनको हम जनरली प्लेस करेंगे, प्लस साइन से नोटेट कर सकते हैं. नेक्स्ट ये कह रहा है मेल और फीमेल एक रूम में नहीं हो सकते, अलग अलग रूम में होंगे, ठीक है. एंड देन नो मैन इज विलिंग टू स्टे इन रूम C और F, यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि रूम C और रूम F, यानी कि रूम C जो है 2 ऑक्यूपेंसी वाला है, रूम F जो है सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला है. तो यहाँ पर कोई भी मेल पर्सन नहीं रह सकता है, और मेल पर्सन नहीं रह सकता है इसका मतलब क्या है, ये जो रूम C है उसके अंदर कौन होगा, विल बी अ फीमेल पर्सन, 2 फीमेल पर्सन होंगे, और रूम F के अंदर एक सिंगल फीमेल पर्सन ही रह सकती है, और बाकी रूम्स के अंदर वी हैव टू अकोमोडेट मेल कैंडिडेट्स. नाउ लास्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, P वांट टू बी अलोन बट डज नॉट वॉन्ट टू स्टे इन रूम B और D. तो P कौन है, P एक मेल पर्सन है. मेल पर्सन जो है वो अकेला रहना चाह रहा है, लेकिन वो B और D में नहीं रहेगा. आप ध्यान से देखिए, यदि वो B और D रूम में सेलेक्ट नहीं हो सकता है, और इसके साथ में यदि C और F तो ऑलरेडी फीमेल्स के लिए ऑक्यूपाइड है, और A जो है वो डबल ऑक्यूपेंसी वाला है, तो इसके पास केवल एक ही ऑप्शन है जो है रूम नंबर E. ओके, तो रूम नंबर E में हम प्लेस कर देंगे P को, विच इज अ मेल पर्सन हियर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, S नीड अ पार्टनर, और S भी एक मेल पर्सन है, तो S नीड अ पार्टनर मीन्स S जो होगा वो हमारा रूम A में शिफ्ट होगा, और यहां पर ये पर्सन आ जाएगा. लेकिन इसने बोला है इज नॉट रेडी टू स्टे विद U और W, ठीक है. तो S के साथ कौन रह सकता है, P तो ऑलरेडी सिंगल रह रहा है, U और W के साथ रहेगा नहीं, तो S के साथ केवल R की पोजीशनिंग बन सकती है. सो हियर वी कैन प्लेस R हियर, R एंड S विल कम टुगेदर. And then X does not want to share her room, means X एक फीमेल है, X एक फीमेल है, अपना रूम शेयर नहीं करेगी, मीन्स जो 2 पॉसिबल रूम्स हैं फीमेल्स के लिए, है ना, C और F, तो उसमें हम F रूम में प्लेस कर देंगे X को. सो हियर X इज प्लेस्ड. नाउ जो C रूम C बचा है उसमें 2 फीमेल्स जो हैं बचे हुए वो हम प्लेस कर सकते हैं, विच विल बी Q एंड T. तो ये हमारा फीमेल ऑक्यूपेंसी पे चला गया. इसके अलावा हमारे पास और कोई डेटा इन्फॉर्म नहीं है, यानी कि अब जो हमारे रूम B और D हैं जो कि सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले हैं, उसके अंदर जो 2 हमारे पास में मेल पर्सन्स रह गए हैं, वो 2 मेल पर्सन्स विल डेफिनेटली कम इन दोज रूम्स, है ना, और वो कहीं पर भी फिक्स हो सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे इसको U या फिर W के लिए फिक्स कर सकते हैं, और सिमिलरली रूम D में भी हम या तो W को ले सकते हैं या U को ले सकते हैं. सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन विच इज नॉट सर्टेन. ओके, तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग विल स्टे इन रूम E. रूम E में हमको क्लियरली दिख रहा है रूम E में P इज देयर. ओके, so it is the option. Next, in which of the following room will U stay? U किस रूम में है वो भी क्लियरली हमारे पास मेंशन है. यहाँ पे या तो वो
रूम डी में होगा या रूम बी के अंदर होगा. सो अकॉर्डिंगली we'll have a best option here as option D. So we can choose it. And the last question for this data, X will stay in which of the following rooms? So X के लिए हमको clearly पता है ये room F के अंदर इसकी occupancy होगी. So this becomes a very traditional way to solve the team formation questions, जहाँ पे हम सबसे पहले एक situation को identify करेंगे, then we'll identify the conditions क्या दिया हुआ है, और उसके बाद हम इन persons को locate कर पाएंगे according what is given in the conditions. Okay, so this is first example. Now we'll keep one more example in this video to make a better understanding. And now coming to this question here, just like the previous one, there are some given conditions, and on those given conditions we have to set the context and then we have to arrange the teams. Now read the question here. First data is saying M, N, P, Q, S and T are 6 members of a group in which there are 3 female members. यानी कि 3 फीमेल हैं तो 3 मेल्स भी होंगे ऑब्वियसली. 6 में से फीमेल वर्क इन द डिपार्टमेंट्स अकाउंट, एडमिन एंड पर्सनल. 3 डिपार्टमेंट हैं और 3 फीमेल्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. एंड सिट ऑन 3 डिफरेंट फ्लोर्स. अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसने क्या दिया हुआ है, आपको इसकी फॉर्मेटिंग दे रखी है कि 3 अलग अलग फ्लोर में अलग अलग डिपार्टमेंट में 3 फीमेल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं. एंड पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट आर नॉट ऑन द सेम फ्लोर. एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी है कि जो सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सेम फ्लोर पे नहीं हो सकते हैं. एंड 2 पर्सन्स वर्क ऑन ईच फ्लोर. एक फ्लोर में 2 पर्सन्स काम कर रहे हैं. नो 2 फीमेल वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट और इन द सेम फ्लोर. इतने डेटा के बाद में विल हैव द क्लैरिटी अबाउट द फॉर्मेट. ओके, तो हमें सिचुएशन क्लियर हो गई है और फॉर्मेट क्या हमारा बनेगा. तो इस फॉर्मेट में हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि फ्लोर क्या हो सकते हैं ना. द गिवन फ्लोर्स आर फ्लोर नंबर 3, फ्लोर नंबर 2 एंड फ्लोर नंबर 1, लोअर एंड अपर एंड देन द टॉप मोस्ट फ्लोर. तो 3 फ्लोर्स हैं. अब इन 3 फ्लोर्स में हमें ये कह रहा है कि मेल और फीमेल्स एक फ्लोर में, एक में मेल होगा तो एक में फीमेल होगा. मतलब 2 फीमेल्स या 2 मेल एक फ्लोर पे हो नहीं सकते हैं. तो हम यहाँ पे एक कैटेगरी बना सकते हैं. व्हाट वी कैन प्लान हियर, एक हम मेल कैटेगरी बना सकते हैं कि 3 फ्लोर में 3 मेल होंगे अलग अलग, और इसी प्रकार से 3 फीमेल भी होंगे. तो वी कैन प्लेस दीज इंफॉर्मेशंस हियर. एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज अ सर्टेन वन, जिसको हम प्लेस कर सकें. क्यू वर्क इन एडमिन डिपार्टमेंट. तो क्यू मेल है या फीमेल है अभी हमें पता नहीं है, और एडमिन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, लेकिन किस फ्लोर पे हमको ये भी नहीं पता है. ठीक है, तो हम इस इंफॉर्मेशन को अभी छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं. एंड दैट सेज एस एंड एम आर ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली मीन्स एस फर्स्ट फ्लोर पे होगा और एम थर्ड फ्लोर पे होगा, लेकिन हमको अभी ये नहीं पता है कि दोनों के जेंडर क्या है. बट यस वी कैन प्रोसीड देम. तो एस विल बी एट फर्स्ट फ्लोर, मे बी अ मेल और फीमेल डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट डेटा. एंड देन जो M है विल बी ऑन द थर्ड फ्लोर. तो इतना डेटा हमारे को दिया हुआ है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, Q इज अ फीमेल, डज नॉट वर्क ऑन द सेकेंड फ्लोर. ओके, तो Q एक फीमेल है, सेकेंड फ्लोर पे नहीं हो सकती, यानी कि ये या तो फर्स्ट फ्लोर पे होगी या फिर ये थर्ड फ्लोर पे होगी ना. इट कैन बी ऑन द फर्स्ट ऑन थर्ड फ्लोर, है ना. इसके साथ में P इज अ मेल वर्क ऑन फर्स्ट फ्लोर. अब ये डेटा हमारे लिए बहुत काम का है ना. इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि P यदि मेल है और फर्स्ट फ्लोर पे है तो फर्स्ट फ्लोर पे मेल कौन हो सकता है, ओनली P. सो यहाँ से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है क्लियर हो जाएगी. दिस इज नॉट गोइंग टू बी S, so this is going to be P and P is a male person. यानी कि P यदि मेल है तो S definitely has to be a female. और अब हमारे पास Q का जो ऑप्शन था, Q फर्स्ट या थर्ड फ्लोर पे हो सकती है, फीमेल हो सकती है. थर्ड फ्लोर तो ऑक्यूपाई हो गया एक फीमेल से, यानी कि अब थर्ड फ्लोर पे कोई भी फीमेल नहीं हो सकती है. तो जो Q है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही अरेंज हो सकती है. तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हमारी क्लियर हो जाती है कि जो पॉसिबिलिटी थी हमारी M की ऑन थर्ड फ्लोर इज रिजेक्टेड फॉर अ फीमेल. तो जो M है वो एक मेल पर्सन होगा और ये जो प्लेस है वो Q के लिए असाइन हो जाएगी बिकॉज इट विल बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर. तो हमारे पास ये डेटा आ चुका है. अब 2 लोग और बच्चे हमारे पास में. वो 2 लोग कौन है, वो 2 लोग हैं हमारे पास में
एन एंड एस, ओके, तो इसके लिए बोल रहा है एन एंड एस वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। अब सेम डिपार्टमेंट मीन्स सेम फ्लोर पे तो हो नहीं सकते ऑब्वियसली, और एन कहाँ पर हो सकता है, एन विल बी ऑन सेकेंड फ्लोर। तो यहाँ पे तुम्हारा एन जो है या तो मेल होगा या फीमेल होगा, और जो दूसरा कैंडिडेट है हमारा जो रह गया है वो कौन है, वो है एन के साथ टी, ओके, एन एंड टी, ये दो पर्सन हमारे रह गए। हमको ये आइडेंटिफाई करना है, एन और एस सेम डिपार्टमेंट में लेकिन पर्सनल डिपार्टमेंट में नहीं है, तो हम देखें कि किस डिपार्टमेंट में पॉसिबली हो सकते हैं। क्यू एडमिन डिपार्टमेंट में, राइट, क्यू एडमिन डिपार्टमेंट में है। और अब आप देखोगे ध्यान से कि जब हम फीमेल्स की बात करेंगे तो तीनों फीमेल्स अलग अलग डिपार्टमेंट के होना चाहिए, तो अभी हमें दूसरी फीमेल, एक तीसरी फीमेल है वो आइडेंटिफाई नहीं हुई है। और क्यू एडमिन डिपार्टमेंट में डेफिनेटली, एस पर्सनल डिपार्टमेंट में नहीं हो सकती। अब आप ध्यान से समझो कि यदि क्यू एडमिन में है, एस पर्सनल में नहीं है, तो एस के लिए कौन सा ऑप्शन बाकी है, एस के लिए एक ही ऑप्शन बाकी है जो तीसरा डिपार्टमेंट है विच इज अकाउंट्स। सो वी कैन नाउ प्लेस दिस डेटा हियर, एस के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट हो जाएगा, और यदि एस के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट हुआ तो एन के लिए भी वही डिपार्टमेंट होगा, और यदि एन के लिए भी वही डिपार्टमेंट होगा तो एन विल नॉट बी अ फीमेल, बिकॉज जो फीमेल्स हैं उनका सेम फ्लोर भी नहीं हो सकता और सेम डिपार्टमेंट भी नहीं हो सकता। यानी कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट का सेकेंड पर्सन है वो एक मेल पर्सन होगा, और मेल के लिए जो जगह हमारे पास में एलिमिनेटेड है वो कौन सी होगी, सेकेंड प्लेस पे, सेकेंड फ्लोर पे, विच विल बी कंफर्म्ड हियर फॉर मेल पर्सन। तो जो एन है वो भी अकाउंट डिपार्टमेंट से हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे जो पर्सन खाली है वो डेफिनेटली टी है, तो हमने टी को प्लेस कर दिया, एंड टी इज नाउ कमिंग फ्रॉम द रेस्ट डिपार्टमेंट जो कि हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट है, ठीक है। और लास्ट में एक डिपार्टमेंट बाकी है, यदि हम क्यू और एम को कंपेयर करें तो एडमिन डिपार्टमेंट से एम नहीं हो सकता, बिकॉज सेम डिपार्टमेंट वाले सेम फ्लोर पे नहीं हो सकते। और इसके साथ आप देखोगे यदि हम इस रोज और कॉलम्स को मैच करें तो रोज से मैच करने पे एडमिन नहीं आ सकता एम, और यदि हम कॉलम से मैच करेंगे तो एम अकाउंट में भी नहीं आ सकता। तो एम के लिए ना अकाउंट है ना ही इसके पास में एडमिन है, तो इसके पास क्या बचा, इसके पास केवल पर्सनल वाला ऑप्शन बचा कि पर्सनल डिपार्टमेंट में दिस पर्सन कैन बी प्लेस्ड, ओके। एंड देन द लास्ट विच इज पी, वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा कि ये जो पी के लिए डिपार्टमेंट है वो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, डेटा को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना होगा बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब इसके साथ हम जो गिवन क्वेश्चन उनको फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पर्सन आर फीमेल। तो फीमेल के लिए जो हमारे पास ग्रुपिंग है वो क्लियर है, क्यू टी एंड एस, क्यू टी एंड एस। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मार्क कर सकते हैं हम। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वाले कौन कौन पर्सन हैं, एक तो क्यू हो गया और दूसरा पी हो गया। तो पी एंड क्यू हियर वी आर नॉट गिवन पी एंड क्यू हियर, तो बेसिकली द आंसर शुड बी नन ऑफ दीज। डेटा तो हमारे पास है, ओके, so I'll miss out is this option Q and P, I'm sorry. So Q and P are the two persons are in admin department, right? Next is in which department does T work? T किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, T पर्सनल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन C हो गया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वर्क ऑन सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पे कौन काम कर रहा है, सेकेंड फ्लोर पे the person are working is N and T. So N and T, this is option D here. And then the last question which says if T is transferred to account and S is transferred to admin. अब ध्यान से देखें, T जो है एक फीमेल है, T को हमने ट्रांसफर कर दिया है अकाउंट पे। यदि यहां पर हम अकाउंट पे ले लें और S को हम ट्रांसफर कर दें एडमिन में, तो दो डिपार्टमेंट चेंज हो गए हैं, इसका मतलब है तीसरा डिपार्टमेंट भी चेंज होगा। देन इट सेज हु इज टू बी ट्रांसफर्ड टू पर्सनल टू मेंटेन द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल ऑन ईच फ्लोर। ऑब्वियस है कि यदि यहाँ पे अकाउंट और एडमिन आ गए तो जो तीसरा डिपार्टमेंट बाकी होगा वो डिपार्टमेंट विल कैरी ऑन विथ पर्सन क्यू विच इज नन अदर बस क्यू, ओके। सो
पर्सनल डिपार्टमेंट में क्यू आ जाएगा. So this is how this data has to be fetched out, and then according to the given condition you have to solve. So I think this is a very basic question for the team formations. I hope you understand what has to be done, what has to be there, has to be analyzed and go according to the questions. So हम आगे move on करेंगे with one more question in the next video. Thank you.